السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہوگا قرآن کو ہم کس طرح پڑھیں۔ آئیے ہم قرآن مجید سے ہی خود پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کو ہم کس طرح پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 16، سورہ نحل، آیت نمبر 98۔ جب تم قرآن کو پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ یعنی جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، یا قرآن مجید کو ہم نماز کے دوران پڑھیں گے، یا ہم چلتے پھرتے زبانی اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، تب بھی ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ آئیے دوسری آیت کیا کہتی ہے۔ سورہ نمبر 20، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 114۔ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم کو جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا مقصد ختم کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر آیت کا مطلب سمجھنا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی آیت کو پڑھیں اس کو ہم سمجھیں۔ جب ہم قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے تب ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے، ورنہ قرآن کو اگر ہم ٹرین کی اسپیڈ سے پڑھیں گے یا پلین کی اسپیڈ سے پڑھیں گے تو ہم قرآن کے مقصد پر کھرے نہیں اتریں گے۔ آئیے اسی تعلق سے دوسری آیت کہتی ہے، سورہ یوسف، آیت نمبر 2 میں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، مگر ہم سبھی لوگوں کو سمجھنے کی ہدایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے یا قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ آیت بیان کی ہے کہ تم سمجھو۔ آئیے دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھوں، سورہ نساء، آیت نمبر 43۔ بے خبری کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اس کو سمجھو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو نماز میں قرآن کی جس آیت کو ہم پڑھیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے تیسری آیت بھی یہی کہتی ہے، سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 242۔ اس طرح اللہ اپنے احکام صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کہا ہے کہ جب بھی تم قرآن کو پڑھو، قرآن کے احکامات کو پڑھو تو اس کو سمجھو۔ جب قرآن کے احکام کو ہم سمجھیں گے تب جا کر ہم اس قرآن کے حکم پر عمل کریں گے۔ سورہ نمبر 56، سورہ واقعہ، آیت نمبر 77 اور 79۔ بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن عزت والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا ہے، اور اس کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہے۔ اس میں 2 باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم
नापाकी से पाक हो। दूसरी बात यह है कि हम कुरान को, अल्लाह के हुक्म को समझने की कोशिश करें और कि अल्लाह हमसे कह क्या रहा है। जब हम समझेंगे तब उस पर हम अमल करेंगे। कुरान की हर आयत को हम पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली अगर हम लेंगे तो हम उससे बहक जाएंगे। सूरा नंबर 25, सूरह फुरकान, आयत नंबर 73। जब उन्हें उनके रब की आयत पढ़कर सुनाई जाती है तो वो उन आयतों पर अंधे और बहरे बनकर नहीं गिर पड़ते। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाता है कि जब भी तुम कुरान की आयतों को पढ़ो तो उस पर गौर करो कि कुरान आपसे कहता क्या है। यहाँ अल्लाह ताला कुरान पर गौर फिक्र करने के लिए कह रहा है, अंधे और बहरे बनकर गिरने पड़ने से हमें मना कर रहा है। तो कुरान के अलावा हम दीन की जो जो बातें हम सुनते हैं तो क्या उसको भी हम समझते हैं, गौर करते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है, ये अल्लाह का हुक्म है या ये कुछ और बात है। इन बातों पर हमें अंधे और बहरे बनकर नहीं गिरना है, बल्कि उस पर गौर करना है, उसको समझना है कि अल्लाह ताला इन आयतों में कह क्या रहा है। सूरा नंबर 4, सूरह निसा, आयत नंबर 82। ये लोग कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है, एकदम साफ साफ कह रहा है कि कुरान में गौर व फिक्र करो। मगर हमारे कुछ आलिम हजरात कहते हैं कि वे कुरान में अकल को दखल नहीं है, जबकि ये बात कुरान के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। ये लोग कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ बयानी पाई जाती। देखिए, कुरान का ये मोजज़ा है कि कुरान में कोई एक आयत दूसरी आयत के खिलाफ नहीं जाती, मगर कुरान के अलावा जहाँ हम दीन ढूंढने की कोशिश करते हैं वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बात ये कह रही है, दूसरी बात इस तरह कहा जा रहा है, तो हम किस बात को माने। कहीं कहा जा रहा है गधा हलाल है, कहीं कहा जा रहा है गधा हराम है, कहीं कहा जा रहा है मछली हलाल है, कहीं कहा जा रहा है कि मछली हराम है। तो लोग करें क्या। ये जो इख्तिलाफ बयानी पाई जाती है ये कुरान के अलावा होगी, कुरान में इख्तिलाफ बयानी नहीं होगी। कुरान जो कहेगा वो हक कहेगा। कुरान अगर किसी चीज़ को यस कहेगा तो किसी दूसरी आयत में कुरान उस बात को नो नहीं कहेगा, या मे और मे नॉट भी नहीं कहेगा कि कर सकते हो या नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में ना। आइए अब दूसरी आयत, सूरा नंबर 1, सूरह अनफाल, आयत नंबर 22। यकीनन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे और गूंगे लोग हैं जो इस कुरान को समझते नहीं हैं। देखिए कितनी बेहतरीन आयत है। यहाँ अल्लाह ताला जो लोग कुरान को समझते नहीं है उन्हें बदतरीन जानवर कहा है। सिर्फ जानवर नहीं कहा है, बदतरीन जानवर मतलब जानवर से भी गए गुजरे वो लोग हैं जो कुरान को समझते नहीं, जो कुरान को फील नहीं करते कि कुरान कह क्या रहा है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला कह रहा है कि वो लोग बहरे हैं, वो लोग गूंगे हैं, जानवर से बदतरीन है ऐसे लोग। लिहाजा ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे दोस्तों, कुरान को समझने की कोशिश करो। कुरान बहुत आसान है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि कुरान बहुत आसान है। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने 4 जगह इरशाद फरमाया है कि कुरान बहुत आसान है। कोई इसको समझने वाला?
सूरह नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 48। जो हक तुम्हारे पास आया है उससे मुंह मोड़कर लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करो। देखिए, हमारे पास हक क्या है? कुरान। कुरान के अलावा जो भी बात हमको दीन के नाम पर सिखाई जा रही है, अल्लाह ताला उन बातों पर अमल करने से मना कर रहा है। अल्लाह ताला यहाँ कह रहा है कि उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। वो जो कह रहे हैं वो कुरान के खिलाफ है। कुरान जो कह रहा है वही हक है। कुरान के अलावा जो बात है वो हक नहीं है दीन के मामले में। सूरह नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 171। जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामे रहो और जो कुछ इसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि तुम गलत काम करने से बचे रहो। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि इस कुरान को मजबूती से हमें थामना है। मजबूती से थामने से मुराद ये नहीं है कि कुरान को पकड़ के हम ऐसा मजबूत पकड़ लें, जी नहीं। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान के हर हुक्म को तुम रस्सी से बांध लो। यानी इस कुरान के हर हुक्म को तुम ये सोच के कहना है या ये सोच कर पढ़ना है, ये सोच कर अमल करना है कि ये मेरे रब का हुक्म है, मुझे इसे मानना ही है, मेरे रब का हुक्म मुझ पर फर्ज है। सूरह नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 204। जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो और खामोश रहो। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब भी कुरान को पढ़ा जाए, यानी आवाज़ से जब पढ़ा जाए तो दूसरा आदमी उसे खामोशी से सुने और तवज्जो के साथ सुने। ऐसा नहीं कि हम आंखें हमारी तो यहाँ सामने है, बदन हमारा तो यहाँ कुरान के सामने है, मगर दिमाग हमारा दुनिया में घूम रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आयत में एक और बात कही जा रही है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़े, जब इमाम आवाज़ से कुरान पढ़ रहा है तो पीछे मुक्तदी को खामोशी से सुनना है। जैसे मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, इन नमाज़ों में इमाम आवाज़ से किरात करते हैं तो मुक्तदी को चाहिए कि वो खामोशी से उस कुरान को सुने, ना कि अपने दिल में कुछ कुरान की आयतों को पढ़े। मगर जब इमाम साहब नमाज के दौरान जब भी कुरान की तिलावत करते हैं मगर वो खामोश रहते हैं, अपने दिल में पढ़ते हैं, जैसे ज़ुहर की नमाज और असर की नमाज, इन नमाज़ों में इमाम साहब अपने दिल में कुरान की आयतों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुक्तदी को चाहिए कि वो खुद अपने दिल में कुरान की आयतों को पढ़े और अपनी नमाज को मुकम्मल करे। अब अगर हम यहाँ पे खामोश रह जाते तो हमारी नमाज इनकम्प्लीट हो जाएगी, क्योंकि नमाज के अंदर अलहम्द शरीफ का पढ़ना फ़र्ज़ है। कुरान खुद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। चलिए अब दूसरी आयत क्या कहती है। सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस आयत नंबर 61। तुम जिस हाल में भी होते हो या कुरान में से कुछ पढ़ते हो या तुम कोई और काम करते हो, जब इसमें मसरूफ़ होते हो तो हम तुम्हारे सामने होते हैं। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम जिस हाल में भी होते हो हम तुम्हें देखते हैं। तुम जिस हाल में भी हो हम तुम्हें फील करते हैं। हमें ये फील करना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हम कोई भी अमल कर रहे हो, अच्छा या बुरा, हर अमल हमारा खुदा हमें
देख रहा है। या जब भी हम कुरान को पढ़ रहे हो तो उस वक्त भी हम ये फील करें कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। सूरह नंबर 17 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 106 106। हमने इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम इसे ठहर ठहर कर पढ़ कर सुनाओ। देखिए अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाता है कि हमने इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम इसे ठहर ठहर कर पढ़ो। जब भी हम कुरान पढ़े एक एक आयत या एक एक वर्ड को हमें ठहर ठहर कर पढ़ना है। बुलेट ट्रेन की स्पीड से हमें कुरान नहीं पढ़ना है। यहाँ ये समझ के चलिए कि अल्लाह ताला बुलेट ट्रेन की स्पीड से कुरान पढ़ने को मना कर रहा है। जिस तरह अक्सर हम लोग देखते हैं कि तरावी की नमाज में कुरान इतनी स्पीड से पढ़ा जाता है कि समझना तो दूर की बात, उसको हम फील तक नहीं करते हैं कि क्या पढ़ा जा रहा है। या लमुना तालमुना के अलावा कोई बात उसमें हमें सुनने में नहीं आती। तो ऐसी नमाज हमें नहीं पढ़नी है, ऐसा कुरान हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ अल्लाह ताला इस तरह कुरान के पढ़ने को हमें मना कर रहा है। अब यही मनाही दूसरी आयत में भी है। सूरह नंबर 20 सूरह ताहा आयत नंबर 114 114। कुरान पढ़ने में जल्दी न किया करो। देखिए एकदम साफ और छोटी सी बात है। अल्लाह फरमा रहा है कुरान पढ़ने में जल्दी न किया करो, रिलैक्सली पढ़ो। जब आप रिलैक्सली पढ़ोगे तब आप उसे समझोगे कि अल्लाह ताला मुझे क्या हुक्म दे रहा है। सूरह नंबर 20 सूरह ताहा आयत नंबर 2। हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरे। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये कुरान हमने तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम कोई मुसीबत में पड़ जाओ। ये कुरान एक याद दहानी है। इस कुरान में अल्लाह ताला ने अपने हुक्मों को बयान किया है। उन हुक्मों को हम याद रखें। जब उन हुक्मों को हम याद रखेंगे तो हम उन हुक्मों पर आसानी से अमल करेंगे। सूरह नंबर 21 सूरह अंबिया आयत नंबर 10। लोगों हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। देखिए ये कितनी बड़ी हमारे लिए इज्जत की बात है कि अल्लाह ताला हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, हर इंसान से कह रहा है, मुसलमान से कह रहा है, हिंदू से कह रहा है, क्रिश्चियन से कह रहा है, हर उस इंसान से कह रहा है कि ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें तुम्हारा जिक्र है। सूरह नंबर 28 सूरह कसस आयत नंबर 85। यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फर्ज किया है वो तुम्हें बेहतरीन अंजाम को पहुंचाने वाला है। देखिए ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये पूरा के पूरा कुरान हम पर फ़र्ज़ है। इसका हर हुक्म हमारे लिए फ़र्ज़ है। बहुत चंद हुक्म ऐसे हैं जो हमारे लिए नफिल, करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जैसे अल्लाह ताला एक आयत में इरशाद फरमाता है कि तुम साथ में मिल बैठ कर खाना खाओ या तुम अकेले अकेले सेपरेट प्लेट में बैठकर खाना खाओ, चलेगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। ऐसे हुक्म बहुत कम है जो नफिल हैं, वरना मैक्सिमम कुरान के हुक्म फ़र्ज़ है।
کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں کسی بھی حال میں کرنا ہے۔ سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 34۔ اللہ کی آیات اور ان حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی آیات جو ہمارے گھروں میں سنائی جاتی ہے جس میں حکمت کی باتیں ہیں، ان حکمت کی باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ان حکمت کی باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کے بعد ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ عمل یہاں اللہ تعالیٰ کس پر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیات پر۔ قرآن کے علاوہ دین ہم کسی اور کتابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، وہاں دین ہے ہی نہیں۔ اصل دین اسی قرآن میں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا تو اسی قرآن کے مطابق کرے گا۔ قرآن کے علاوہ وہاں پر کوئی کتاب نہیں ہوگی، صرف قرآن ہوگا، اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کے مطابق ہمارا عمل ہوا، قرآن کے حکموں کے مطابق ہمارا عمل ہوا تو قابل قبول ہوگا، اور قرآن کے حکموں سے ہٹ کر وہ عمل ہوا جو قرآن میں ہے ہی نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا اے میرے بھائیوں، بس قرآن کو دیکھیے گا اور قرآن کی آیتوں کو دیکھیے، دین کو قرآن کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش براہ کرم نہ کیجیے گا۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 69۔ یہ قرآن نصیحت کے لیے واضح اوپن تاکہ خبردار کر دے ہر اس شخص کو جو زندہ ہو۔ اب دیکھیے یہ آیت سورہ یاسین میں ہے، اور سورہ یاسین کو ہم نے سمجھ کر کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سورہ یاسین زندوں کے لیے آیا تھا، اور اسی سورہ یاسین کو بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی سورہ یاسین کو ہم لوگ مردوں کے لیے پڑھتے، زندوں کے لیے نہیں پڑھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے اوپن ہے، نصیحت تمام کی تمام قرآن میں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کی نصیحت ہر اس شخص کے لیے ہے جو زندہ ہو، مردوں کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، کیونکہ مردہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن تو عمل کرنے کی کتاب ہے کہ اس کی باتیں رہنمائی والی ہے، اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہے، اس رہنمائی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ سورہ نمبر 38 سورہ صاد آیت نمبر 29۔ یہ کتاب بڑی بابرکت ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہم سب کی طرف نازل کی گئی، ہر انسان کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو اس دنیا میں زندہ ہو، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ اس کی آیات پر ہمیں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارے عالم حضرات، کچھ لوگ، تمام لوگ نہیں کہہ رہا ہوں میں، کچھ عالم حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، جبکہ قرآن کے اندر کم از کم 105 آیات ایسی ہیں جو کہتی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں وہ آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جس کو چاہیے وہ کمنٹ میں
اس بات کو سوال کو پیش کرے انشاءاللہ میں ان آیتوں کو پیش کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرآن کی آیت پر غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھیے یہ وہ چند آیات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے یا قرآن ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے پڑھنے کے تعلق سے، یہ ساری باتیں میں نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب اگر ان آیتوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے قریب پہنچیں گے، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اور اگر ان آیتوں کے خلاف ہم چلیں گے، ان دوسری کتابوں کی نصیحتوں کو ہم لیں گے تو ہم اللہ سے دوری اختیار کر لیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔